Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to start combination. In the previous lecture, we studied about permutation, linear permutation, circular permutation and some examples. Okay, today we are going to discuss what is the fundamentals of combination. आई बात समझ में? And with some examples. So student, without wasting time, let us understand what is combination. Student, if I talk about combination, then combination means selection. Combination means selection. Combination. Selection. See student, I already told you in permutation and combination, one of the most important fundamental principle is principle of addition and principle of multiplication. Fundamental principle of addition and multiplication. I already told you NPR is a symbol. Similarly, NCR is also a symbol which represents some task. Let us understand what is NPR first. NPR. In the previous class, I already told you NPR means selection and arrangement. My NPR is comprised of two subtasks, selection and arrangement. Selection and arrangement. Correct. Students, selection is what? Combination. I can replace it by, so NPR equal to selection can be represented by NCR, and according to multiplication principle, and means multiply. Selection and arrangement. Arrangement of our distinct objects. Arrangement of our distinct object at our places, that is R factorial. R factorial. So my dear students, from here my NCR equal to NPR divided by R factorial, and according to the formula, students, what is the value of NPR? N factorial divided by n minus r factorial into r factorial. This is my NCR. NCR means meaning of combination is selection of objects. The number of selections that can be formed from n different objects taken are at a time. That is NCR equal to n factorial divided by, student, यहां पे गलत लिखा गया है, divided by r factorial, divided by r factorial. This would be r factorial into n minus r factorial. I already, देखो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर रहेगा तो कहीं कोई मिस्टेक भी होगी तो आपको पकड़ में आ जाएगी, ठीक है? नहीं तो आप खुद कंफ्यूज होने लगोगे कि मेरा गलत है कि इनका गलत है. आई बात समझ में? So my dear student, this is the fundamental principle of NCR. I already told you NCR is a symbol. ये किसी टास्क को रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट, सिलेक्शन में ऑर्डर डजंट मैटर. यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर मैटर नहीं करता है. मतलब राम श्याम, श्याम राम. It was in permutation, two different arrangements, but when we are inviting, when we are selecting Ram, Syam, Syam, Ram, this is same selection. मुझे बर्थडे पार्टी में किन्हीं दो लोगों को बुलाना है, या मैं कह लो क्लास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है,
उसमें मुझे स्टूडेंट किसी को कॉल करना है और 2 स्टूडेंट हैं, उनको मुझे बुलाना है, तो मैं बोलूंगा राम श्याम आप आगे आ जाओ, या मैं बोलूंगा श्याम राम। दिस इज कंसीडर्ड एज वन सिलेक्शन ओनली, मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए बी ए सेम सिलेक्शन है, करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली स्टूडेंट व्हाट यू मीन बाय NC0, जैसे मुझे बर्थडे पार्टी में इनविटेशन देना था, कितने लोगों को, R पर्संस को, मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, N पर्संस, मुझे सिलेक्ट करना है R पर्संस आउट ऑफ N फ्रेंड्स। आई बात समझ में, तो NCR हो जाएगा। स्टूडेंट मुझे बर्थडे पार्टी देना है, मैंने N में से किसी 0 को सिलेक्ट कर लिया, 0 इज नथिंग, मतलब किसी को नहीं सिलेक्ट किया, पार्टी हो गई, तो ये एक तरीका होगा। मैंने किसी को नहीं बुलाया और पार्टी हो गई, NC0 मींस 1। सिमिलरली स्टूडेंट मेरी बर्थडे पार्टी है, मैंने सबको इनवाइट कर लिया, NCN इज ऑल्सो 1, ये भी क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। भाई सबको बुला लिया, हो गई पार्टी, एक तरीका, किसी को नहीं बुलाया एक तरीका, आई बात समझ में, सबको बुला लिया एक तरीका। आप फॉर्मूले में भी रख के इनको देख सकते हो, MCN n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 1, NC0 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये भी क्या आ जाएगा 1। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अच्छा, और देखिए, इफ वी आर गिवन n थिंग्स फॉर सिलेक्शन विदाउट गिवन द कंडीशन दैट about how many things we should select, then we can select none of them, मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, one of them and so on all of them। जैसे मेरे n फ्रेंड्स हैं, मुझे बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए काउंट करना है कि मैं बर्थडे पार्टी में कितने तरीके से इनविटेशन दे सकता हूं, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर सकता हूं कितने तरीके से, ये नहीं बताया गया कितने फ्रेंड्स को सिलेक्ट करना है, करेक्ट। तो आई कैन सिलेक्ट आइदर 0 फ्रेंड्स और 1 फ्रेंड्स और 2 फ्रेंड्स एंड डॉट डॉट ऑल ऑफ देम। वही यहां कहा जा रहा है, इफ वी आर गिवन n थिंग्स फॉर सिलेक्शन विदाउट गिवन द कंडीशन अबाउट हाउ मेनी थिंग्स वी शुड सेलेक्ट, then we can select none of them, one of them and so on all of them, then the total number of selection equal to my task can be completed either by selecting 0 friends or means addition, जैसे ही task complete होगी addition NC1 और 1 friends और 2 friends और n friends, तो मैं सबको कंसीडरेशन में लूंगा क्योंकि यहां मेंशन नहीं किया गया है that is 2 power n। There is simplest way to understand student, there are n friends, first friend, how many possibilities there, either I can select or not, 2 possibility for first friend। Now second friend, either I can select second or not, 2 possibility for second, third friend has also 2 possibility and so on, nth friend has 2 possibility, so my task can be completed in 2 and this one n times 2 power n। इसकी वैल्यू भी आप जानते हो, NC0 plus NC1 plus NC2 and so on, NCn equal to 2 power n। Similarly student, the number of selections from n different objects taking at least 1। अब ये कहा जा रहा है कि आप 0 फ्रेंड्स से पार्टी को आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, खुद पार्टी नहीं करोगे, अकेले पार्टी आप नहीं करोगे, कम से कम एक फ्रेंड को आपको लाना है। तो NC0 हटा दिया, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCn, दैट इज ऑल्सो रिटन एज स्टूडेंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट NCn। तो NC0 हटाना है, मैंने NC0 माइनस कर दिया, दिस कैन बी रिटन एज 2 power
n-1। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेशन, दैट इज सिलेक्शन वेयर ऑर्डर डजंट मैटर्स। राजा रानी, रानी राजा, एक ही बात हुई, दो बात नहीं हुई। सिलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा अप्रोच है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, similar objects. Like my dear students, take an example. We have three circles, same shape, same size, same color, same area, same radius, same diameter, everything is same. That is known as similar object. If I talk about number of possible selections here, students see, मेरे पास क्या है, सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर के 3 सर्कल्स हैं। मैं इसमें बाद में आऊंगा, पहले देखिए आप एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, फिर मैं जनरलाइज कर देता हूं। करेक्ट, देयर आर 3 सर्कल्स विद द सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम रेडियस, एवरीथिंग इज सेम। हम यहां डिस्टिंक्ट नहीं ले रहे हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस आर देयर, तो यहां स्टूडेंट नंबर ऑफ सर्कल मैटर करेगा। आइदर आई कैन सेलेक्ट 0 सर्कल, आइदर आई कैन सेलेक्ट 1 सर्कल, or I can select 2 circles, or I can all 3 circles. How many possible selections are there? Number of selections equal to either I can select 1 circle or I can select 2 circles, any 2, चाहे इसको 2 को सिलेक्ट कर लो, इसको 2 को सिलेक्ट कर लो, वो एक ही सिलेक्शन हुआ क्योंकि सिमिलर सर्कल्स हैं। और 3 सर्कल्स, स्टूडेंट हम यहां पे +1 भी करेंगे क्योंकि किसी भी सिलेक्शन में एक भी सिलेक्ट ना करो, दैट इज 1 पॉसिबल वे। एक भी सर्कल ना सिलेक्ट करो या सारे सर्कल सिलेक्ट कर लो। आई बात समझ में? या तो एक सर्कल सिलेक्शन का एक तरीका, 2 सर्कल सिलेक्शन का एक तरीका, 3 सर्कल सिलेक्शन का एक तरीका, 0 का भी एक तरीका। तो जितने सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे उसी में +1 कर दो, मतलब 3 + 1 = 4 वेज। कितना वेज होगा? 4 वेज। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं माय डियर, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मेरे पास 3 सिमिलर सर्कल्स हैं, 3 सिमिलर सर्कल्स हैं। करेक्ट, एंड 4 सिमिलर स्क्वायर हैं, 4 सिमिलर स्क्वायर हैं। Now what is the possible number of selections? Give a pause and try it. Comment in the video. See student, these are similar object, but 2 different types of similarity is there. Similar circles, similar squares. Correct? हम यहां पे प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हैं। Selection of any object is my task, which is comprised of 2 subtasks. Selection of circles, selection of squares. Selection of circle की बात करें स्टूडेंट, मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। Selection of circle can be in 3 + 1 ways. Similarly, selection of square can be 1, 2, 3, 4, 4 + 1 way. 1 ways. Correct? So total number of possible ways, total number of possible ways equal to student 4 × 5, that is 3 + 1 × 4 + 1, because these are in succession. मेरी टास्क तब तक नहीं कंप्लीट होगी जब तक कि ये दोनों ना कंप्लीट हो जाएं।
4 ways of selection of circle and 5 ways of selection of square. Any number of square equal to 20. 20 is the right answer. एक बार और आइए जनरलाइजेशन में देखिए, मेरे पास स्टूडेंट 3 सर्कल्स हैं with same size, same shape, same color, everything is same. Correct? Nice. Then 4 square with same shape, same size, same color, same area. I can't differentiate among them. And one triangle is there, and one hexagon is there. One hexagon is there. Now, how many possibilities are there for number of selections? See, students, I will differentiate, I will divide this problem in 3 parts. Part number 1, part number 2 means selection of circle, selection of square, selection of distinct objects. आई बात समझ में? Selection of distinct object. I can select any circle in 3 plus 1 ways. I can select circle, any number of square in 4 plus 1 ways, and this triangle has 2 possibility. This triangle can be selected in 2 ways, and this square can be selected in 2 ways. Either I can select or not, either I can select or not, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको. How many objects are there? 2. Either I can select 0 objects out of 2, or means addition. I can select 1 objects out of 2, or I can select all 2 objects out of 2. This is the counting. So student, total number of ways equal to 3 plus 1 and 4 plus 1, and this is 2 power 2. Then my dear students, triangle has 2 possibility, 2, and hexagon has 2 possibility into 2. Correct? This is the basic principle of selection of similar objects. Total number of selections possible by taking some or all. Sum का मतलब कुछ या सारे या एक भी नहीं. Out of P plus Q plus R things. Total objects कितने हैं मेरे पास? P plus Q plus R, where P are like one kind, Q are like second kind, R are like third kind. So total number of ways of selection, student जो P टाइप के हैं, ठीक है, P एक टाइप के हैं, उनमें P plus 1, जितने ऑब्जेक्ट उसी में प्लस 1 कर दो. प्लस 1 क्यों करते हैं? कि हम एक भी ना सिलेक्ट करें, वो भी एक तरीका होगा. P plus 1 वेव से फर्स्ट काइंड का सिलेक्ट किया जा सकता है. Q plus 1 टाइप से वेव से सेकेंड टाइप का किया जा सकता है. R plus 1 वेव से हमें थर्ड काइंड का सिलेक्ट किया जा सकता है. प्रॉब्लम को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया. फर्स्ट पार्ट में P plus 1 वेज, सेकेंड पार्ट में Q plus 1 वेज, R plus 1. सो टोटल नंबर ऑफ वेज according to the fundamental principle of multiplication is P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1. करेक्ट? अब जनरलाइज कर देते हैं. टोटल number of selections possible by taking some or all out of P plus Q plus R plus S things, where P are like one kind, Q are like second kind, R are like third kind, and S different things. Then total number of ways of selections equal to P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 into 2 power S. इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो. This can be written as SC0 or SC1.
C1 and so on SCS that is equal to 2 power S। या आप ऐसे समझ सकते हो, you can generalize it by there are S different object, every object has two possibility for selection, either selected or not। ठीक है, everyone has two possibility, 2 into 2 into 2 how many times? S times। आई बात समझ में? इसी में अगर एटलीस्ट लगाएगा तो आप वहां से शुरू कर, जैसे कहेगा एटलीस्ट 1 तो SC1 से सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने इसको भी बता दिया कि कभी कभी एटलीस्ट वाला केस भी पूछा जाता है, एटलीस्ट वाले में 2 पावर S माइनस 1 कर देते हैं। ठीक, तो हम जब भी ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट, उसको हम ब्रेक कर लेंगे सब टास्क में और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। मैं बहुत पहले से जब मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, देन आई टोल्ड यू दैट एनसीआर एंड एनपीआर ये कुछ अलग से प्रिंसिपल नहीं है, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और बार बार मैं उसी का यूज कर रहा हूं। आई बात समझ में? आइए कुछ एग्जांपल लिए जाए, समझा जाए। स्टूडेंट एक बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है जो कि IIT जेईई में भी कई बार पूछी गई, गेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और लगभग हर इंस्टीट्यूट इसको अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते हैं। द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन कंटेन्स 3 sections। हाउ मेनी sections? A, B, C। There are 6, 4 and 3 questions in section A, B, C respectively। A student has the freedom to answer any number of questions attempting at least one from each section। कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट उसको हर सेक्शन से, ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन एक ही से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट how many sections are there? Section A and section B and section C। Section A containing 6 questions, section B containing 4 questions, section C containing 3 questions। करेक्ट? हमने अगेन टास्क को 3 सब टास्क में ब्रेक कर दिया। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम A, selection of questions from B, selection of questions from C। अच्छा स्टूडेंट, every question has 2 possibility, so total possibility 2 power 6 minus 1। why minus 1 student? because हम वो केस बाहर कर दिए जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करेंगे। Either I can select 0 question 6C0 plus 6C1 plus 6C2 plus 6C3 dot dot 6C6, उसमें से 6C0 माइनस कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन B 2 power 4 minus 1, सिलेक्शन फ्रॉम सेक्शन C 2 power 3 minus 1। नाउ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, total number of ways of selection equal to 2 power 6 minus 1 into 2 power 4 minus 1 into 2 power 3 minus 1। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई बात समझ में? आप लोग कैलसी चलाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा। ठीक है, अगर मेरे पास भी कैलसी मैं चला के कर सकता हूं, ये बहुत आसान है। ठीक है, आइए वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट लिया गया है। क्या लिया गया है? इन हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट no 2 माइनस साइंस आर टुगेदर। 7 प्लस साइन है, ठीक है, कितने प्लस साइन है? 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस। कह रहा है आप इस तरीके से अरेंज करिए कि कोई 2 माइनस साइन एक साथ ना आए। सर सिंबल्स ज्यादा कौन है,
प्लस वाले, दो प्लस के बीच में आप एक माइनस अरेंज कर दीजिए, कभी माइनस वाला एक साथ नहीं आएगा। प्लस वाले कितने हैं? 7 प्लस 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 1 2 3 4 5 6 and 7, correct? See my dear students, 7 plus sign can be arranged in only one way. In how many ways you can arrange 7 plus sign? One way. And is my task is to arrange plus and minus sign. हमने अपने टास्क को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अरेंजिंग प्लस साइंस एंड अरेंजिंग माइनस साइन। हमने प्लस साइन अरेंज कर लिया इन हाउ मेनी वेज? ओनली वन वे। 7 प्लस साइन इन 7 प्लेसेस can be arranged in only one way because they are similar object. Now students, there are 1 2 3 4 5 6 7 8 places are there for minus sign. And how many minus sign are available for you? 5 only. So students, you have to select 5 places out of 8 places. You can select 5 places out of 8 and then arrange them. आप माइनस 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 सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे, उनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो इनटू 1। फिर से समझिए, हमने 7 प्लस साइन को 7 प्लेसेस पे वन वे से अरेंज कर दिया। देन मेरे पास माइनस के लिए दो माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, दो प्लस के बीच में एक माइनस का प्लेस काउंट कर लिया। यहां भी माइनस रख सकता हूं, यहां भी, कहीं भी। देयर आर 8 प्लेसेस जहां पे मैं माइनस सिंबल को अरेंज कर सकता हूं, करेक्ट? तो मैंने इन 8 प्लेसेस में से 5 प्लेस सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि माइनस सिंबल 5 ही है। 8C5 सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट in only one way because they are similar object, correct? So my right answer is 8C5. Correct answer is 8C5. Answer is correct. कितने प्यारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से ऐसी प्रॉब्लम्स को ब्रेक किया जा सकता है। गेट में एक बार ये क्वेश्चन आया, 5 teams have to compete in a league with every team playing every other team exactly once. Before going to the next round, how many matches will have to be held to complete the league round of matches? इसे हैंडशेक प्रॉब्लम कहते हैं। इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। क्या बोला जाता है इसे? हैंडशेक प्रॉब्लम। हैंडशेक प्रॉब्लम बोला जाता है, जैसे एक कमरे में n पर्सन्स हैं, हर किसी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे? आई बात समझ में? ये काउंट करना हो तो उसी को कुछ इस तरीके से समझिए। टीम कितनी है अपने पास स्टूडेंट? टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, टीम नंबर 5। हमने एक टीम को इस साइड ले लिया, ठीक है, और काउंट कर लिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस वुड बी देयर। यहां से मिला टोटल नंबर ऑफ मैचेस वुड बी 4, करेक्ट? अभी टीम 1 का काम हो गया, अब बची ये 4 टीम्स, इसमें से T2 को सेपरेट कर लिया, T3, T4, T5, T5, इनका सबसे मैच करा दिया। हाउ मेनी मैचेस आर देयर? 3। कितनी मैचेस हो गई? 3। इनका भी काम हो गया, T1 को बाहर कर दिया, T2 को बाहर कर दिया। जैसे एक आदमी को कहा भैया तुम सबसे हाथ मिला लो, हैंडशेक नंबर 1, हैंडशेक नंबर 2, हैंडशेक नंबर 3, हैंडशेक नंबर 4 हैंडशेक हो गए। फिर हमने कहा कि आप चले जाइए कमरे से बाहर, पर्सन नंबर 2, ठीक है, हमने कहा हैंडशेक हैंडशेक हैंडशेक, आप भी बाहर जाइए। अब कौन बचा स्टूडेंट? T3 को सेपरेट किया, T4
T5, correct? How many number of handsets are there? 2. और अब बचे T4 and T5. How many handsets are there? 1. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 + 2 + 3 + 4. आई बात समझ में? अगर यहां पे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + n डॉट डॉट n - 1. जरा देखिए ना, जैसे 5 टीम्स थी तो यहां पे सम कहां तक गया? 4 तक. अगर n टीम्स होती तो क्या होता? n - 1. सम क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज इक्वल टू n - 1 बाई 2. What is the value of n? 5. 5 into 4 by 2 equal to 10. ये तो रहा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द हैंडशेक थियरम, या कह लो हैंडशेक प्रॉब्लम. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वुड बी n - 1 by 2 अगर नंबर ऑफ पर्संस कमरे में n है. वैसे ही टीम कितनी है? 5. तो टोटल नंबर ऑफ लीग मैचेस नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए अगर सबको सबसे एक बार खेलना पड़े तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. इसका एक और तरीका, ऑल्टरनेट मेथड. स्टूडेंट, एक मैच खेलने के लिए कितनी टीम की जरूरत होगी? एक मैच खेलने के लिए कितनी टीम की जरूरत होगी? 2 टीम की. 5 में से 2 टीम आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? दैट इज 5c2, 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial equal to 5 into 4 divided by 2. 5 कैसे भाई? 5 into 4 लिखा, 3 factorial बचा, उसको कैंसिल कर दिया, नीचे बचा 2 factorial. 2 factorial का मतलब 2 equal to 10. तो ये सबसे आसान तरीका है NC2. मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है. ठीक है, हमें कॉम्बिनेशन क्या करता? स्मार्ट सिलेक्शन. स्मार्टली हम लोग सिलेक्शन को काउंट कर लें, इसके लिए हम लोग एनसीआर का यूज करते हैं. आई बात समझ में? स्टूडेंट, वन मोर प्रॉब्लम इज देयर. बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है. ठीक है, बहुत जगह पूछी गई है. अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स. एक टीम बनानी है मेरे को. ठीक है, कितने की? डेलीगेशन में कितने लोग होंगे? 4. A team of 4 students is to be selected from a total of 12 students. In how many ways team can be selected? If all the students are equally willing. मुझे बिल्कुल अनबायस्ड होके अगर काउंटिंग करना हो, मतलब सारे लोग इक्वली विलिंग हैं, सबको इक्वल प्रेफरेंस देना हो, तो स्टूडेंट टोटल टीम की जो पॉसिबिलिटी होगी 12c4. 12 में से किसी 4 को आप चूज कर सकते हो. दिस इज द नंबर ऑफ वेज. करेक्ट. सेकेंड देखिए, 2 पर्टिकुलर पर्सन स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द टीम. कोई 2 पर्सन की आपको ये बता दिया गया, इन दोनों को तो रखना ही रखना है, इसमें वेज नहीं होगा. इसका एक तरीका हो गया, हमने 2 पर्सन को सिलेक्ट कर लिया. कितने तरीके से? एक तरीके से. एंड अभी 2 बाकी हैं. 2 का सिलेक्शन हो गया. कितने तरीके से? एक तरीके से. अभी 2 बाकी हैं. उन 2 को कितने में से सिलेक्ट करोगे? 10 में से. क्यों भाई? 12 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे 12c2. कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको बता दिया जाएगा कि ये 2 आपको सिलेक्ट करने, मैं उसमें 12c2 नहीं करूंगा. वो बोल दिया गया 2 पर्टिकुलर पर्संस हैव टू बी सिलेक्टेड. इसमें कोई चॉइस नहीं है. कहीं आप ये सोच रहे हो पहले उन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ये मेंशन किया गया कि 2 पर्टिकुलर पर्सन है, उनमें कोई चॉइस नहीं है. उसके लिए एक तरीका, बाकी 2 जो बचे उनको 10 में से सिलेक्ट कर लेंगे. 10c2. ठीक है. अच्छा, और देखिए, 2 पर्टिकुलर पर्सन डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन. 2 पर्टिकुलर लोग एक साथ डेलीगेशन में नहीं रहना चाहते. अब एक साथ डेलीगेशन में नहीं रहना चाहते
तो या तो ऐसा कर सकते हैं, टू पर्टिकुलर पर्संस डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन, ऐसे काउंट कर लो कि वो दोनों डेलीगेशन में आए हैं। ठीक है, अगर उनको दोनों को डेलीगेशन में लेना हो, ठीक है, तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। मैं कॉम्प्लीमेंट्री सोच रहा हूं, फिर से समझिए, हमसे ये कह रहा है कि ये काउंट करके बताओ, टू पर्टिकुलर पर्संस डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन, दो लोग डेलीगेशन में, पर्टिकुलर लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो या तो मैं ऐसे करूं, या तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लूं, या तो उन दोनों को सिलेक्ट ना करूं। आई बात समझ में? दो तरीका। कैसे? मैंने उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और देख लिया कि कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, टोटल में से माइनस कर दो। 12C4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन 4 पर्सन का डेलीगेशन बना सकता हूं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इसमें से वो नंबर माइनस कर दिया, वो वेज माइनस कर दिया जिसमें वो दोनों एक साथ आ रहे थे। कितने में आ रहे थे? 1 into 10C2। अब दूसरा क्या है? टू पर्टिकुलर पर्सन हैव टू बी इंक्लूडेड इन द टीम। ठीक है, अब जब वो दोनों एक साथ नहीं आना चाहते, दोनों एक साथ नहीं आना चाहते, तो मैंने क्या कर लिया, ये काउंटिंग कर ली कि टोटल नंबर ऑफ टीम का फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, और उसमें से वो नंबर काउंट कर लिया जिसमें वो दोनों एक साथ आ रहे थे। तो ये बड़ा आसान हो गया। अब उसमें कोई एक आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा, ये सब मुझे काउंट नहीं करना पड़ा। आइए देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस, टू स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली। Two particular persons have to be included in the team. Two students wish to be included. इसमें और इसमें डिफरेंस है स्टूडेंट। इसमें क्या कहा गया कि टू पर्टिकुलर पर्सन हैव टू बी इंक्लूडेड, उन दोनों को इंक्लूड करना आपकी मजबूरी थी। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे या तो आएंगे ही नहीं। दो तरीका, आइदर आई कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, मतलब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया एक तरीके से, बाकी दो लोगों को 10 में से सिलेक्ट कर लिया एक तरीका, और इन दोनों को सिलेक्ट ही नहीं किया, मैंने 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। देखो आप समझिए बात को, तुम दो आदमी हो, कह रहे हो कि हम आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। जैसे कोई क्रिकेट टीम में कोई दो पर्टिकुलर पर्सन, कह लो रोहित और विराट, ये कह रहे हैं हम आएंगे तो साथ में आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। तो दो तरीका, या तो उनका एटीट्यूड झेलो, दोनों को ले लो, और या तो टाटा बाय बाय कर दो। हमने एटीट्यूड झेला, देखा कितने तरीके से हो सकता है, उन दोनों को ले लिया, बाकी दो किस में से सिलेक्ट किए? 10 में से। करेक्ट, एक तरीका। और मींस एडिशन, उन दोनों को बोला भैया टाटा बाय बाय, बचे 10 लोग, उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये है पॉसिबल सिलेक्शन, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ एनसीआर। ठीक है, जिसको आप एक सिंबॉलिक नोटेशन देते हो एनसीआर। ठीक है, हमने स्टूडेंट कॉम्बिनेशन में कई सारी चीजें डिस्कस की, फंडामेंटल्स। अब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका पूरा कॉम्बिनेट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिजियन होल प्रिंसिपल। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।